MgX. In this R negative charge, MgX positive charge. Reaction with carbonyl compounds, generally R C double bond O R dash. R मतलब hydrogen. Here you can write R dash or hydrogen and alkyl. कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन मिथाइल सब कुछ. Then it is giving R OH R dash. इधर एक काम करो, इधर डबल डैश दे दो. R double dash. This is the product. ठीक है. I will take one example. I will explain the mechanism. Methyl magnesium bromide. Methyl magnesium bromide I am taking. Methyl is partially negative, magnesium bromide partially positive. ठीक है. Bond. चलो. Plus aldehyde. I am taking first aldehyde. Formaldehyde I am taking. Formaldehyde. In the carbonyl compounds, nucleophilic addition reaction takes place. See, this pi bond is partially shifted to oxygen side, so oxygen partially negative, carbon partially positive. Either alkyl is partially negative, remaining part partially positive. So this methyl is attacking on this carbon. Remaining part will go there, right? Now हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ऊपर O माइनस के साथ क्या होगा? MgBr प्लस. नीचे मिथाइल, इधर मिथाइल, राइट. आगे तो कोई रिमूव होने वाला कुछ नहीं है, सब हाइड्रोजन्स अल्काइल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है. देन वी विल डू हाइड्रोलिसिस. H3O प्लस लिखते हैं. H3O प्लस होता क्या है? एडिशन ऑफ वाटर मींस देखो H प्लस एंड OH माइनस, वो एडिशन होता है. कहाँ? देखो H प्लस विल गो टू ऑक्सीजन, OH माइनस विल गो टू द मैग्नीशियम. सो फाइनली द प्रोडक्ट इज हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, डाउन साइड CH3, ऊपर O माइनस के पास क्या होगा? हाइड्रोजन. दिस MgBr प्लस एंड OH माइनस, दिस इज द बाई प्रोडक्ट. मैग्नीशियम एक साइड, ब्रोमीन एक साइड, OH. दिस इज द प्रोडक्ट. नाउ मेन इंटेंशन ये था, ये फॉर्माल्डिहाइड लेते तो फॉर्माल्डिहाइड. If you take formaldehyde, you will get primary alcohols. This is the point important. Primary alcohols. Okay, formaldehyde है तो primary alcohol. देखो aldehyde का मैं इधर नंबर C14 I am giving. C14. वो C14 वाला कौन होगा इधर? ये alcohol है ना? This alcohol carbon. This is the C14 alcohol. मतलब aldehyde becoming alcohol. My R group Grignard reagent में whatever R group I will take, this is the R group. ये है ना, ये Grignard reagent से आ गया था. मैं इधर मिथाइल लिया था इसलिए मिथाइल. If I take the propyl, there it will come propyl. Okay. Suppose if I want to prepare butanol, then what should I take? ठीक है, मैं क्वेश्चन देता हूं इसमें. I want to prepare this prop N-butanol. I want to prepare. ठीक है. So one is the Grignard reagent RMgX. ठीक है. Primary alcohol मतलब 100% you have to take only formaldehyde. तो formaldehyde लिया था HCHO.
Now tell me, what is the R here? Everyone should respond. What is the R here? R is methyl, ethyl, propyl, butyl, pentyl. What is the answer? What is the R? What is the R? What is the R here? Response fast. Understood the question? Question तो clear है? 1, 2, 3, 4. Butanol. Butane 1-ol. Okay, right. The Grignard reagent we are taking propyl. We have to take propyl. 3 carbon chain we have to take. Then only 4 carbon वाला बनेगा. बस इतना ही. Right. Enough. Good. Propyl. R होगा propyl. Propyl magnesium bromide. Then formaldehyde से बनेगा. Now note point. Can we prepare methyl alcohol? Can we prepare methyl alcohol? Is it possible? देखो methyl alcohol है तो मिनिमम 1 कार्बन तो लेना ही पड़ेगा. इधर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में 1 कार्बन वाला लेना, मतलब मिनिमम 2 कार्बन बनेगा प्रोडक्ट में. So note down one point. Star mark. Note. Methyl alcohol we cannot prepare by this method. Methyl alcohol we cannot prepare by this method. Methyl alcohol we cannot prepare by this method. Okay, written this. Next. Second, इसमें 2 methyl magnesium bromide I am taking. तुम लोग वापस लिखना है, मेरे का तो शॉर्टकट है. ठीक है, मैं लिया था इधर. ठीक है, अभी मैं लेता हूं इधर R I am taking. ठीक है, then here one of the hydrogen becoming R. Right, one of the hydrogen becoming R. One of the hydrogen becoming R. तब क्या बनेगा इधर? Secondary alcohols are forming. Secondary alcohol remaining as it is. Secondary alcohol. क्यों? The OH connected carbon again connected with 2 carbons. That's why. That means here any aldehyde, formaldehyde छोड़ के remaining aldehyde if you take, you will get secondary alcohols. So any aldehyde is giving secondary alcohols. All aldehydes, any aldehyde is aldehyde. Okay, now done fast. Next, third. मेरे को शॉर्टकट में हो जाता है, बस दूसरा हाइड्रोजन भी निकाल दो. ठीक है, अभी इधर भी एक मिथाइल. You can take R group also, no problem. मिथाइल नहीं, I am taking ethyl. ठीक है, ethyl, क्योंकि ऑलरेडी एक मिथाइल है. ethyl I am taking, मतलब at this position ethyl. At this position ethyl. Right? अभी क्या होगा? ऑल्डिहाइड नहीं है, अभी कीटोन. कीटोन में ऐसा कोई सेपरेट नहीं रहता. ऑल्डिहाइड में एक तो फॉर्माल्डिहाइड है, दूसरा ऑल्डिहाइड है, लेकिन कीटोन में सब तो एक ही टाइप है, कीटोन. राइट. If I take the ketone, I will get it here tertiary alcohols. I will get it here tertiary alcohols.
So all ketones react with the Grignard reagent forming tertiary alcohols. Tertiary alcohols. Anyone is writing like this? पहले ब्लू पेन से लिख के अभी रेड पेन से ऐसा मत लिखना, ठीक है? You have to write it again. सर भी शॉर्टकट कर रहे हैं, हम भी करेंगे रेड पेन से और ग्रीन पेन से लेके. See, suppose if I take carboxylic acid, don't write, just carboxylic acid. The Grignard reagent, is it react with carboxylic acid? Suppose react हो गया, क्या बनेगा? What you are expecting? What it will give? Any idea? Because already we discussed this one. Grignard reagents 2-3 times आ गए थे. What it will give? हम तो भूल जाते हैं इजीली, राइट? Grignard reagent react with acidic hydrogen या active hydrogen always produce alkane. Acidic hydrogen है इधर, वाटर में भी रहता है, अल्कोहल में भी रहता है, बस वो हाइड्रोजन मिल गए ना वो तो अल्केन बनेगा, ठीक है? अल्केन तो नहीं बनना है हमको, तो अल्कोहल बनाना है, तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लेना है, ठीक है? ले दे दो, it will get alkane, right? So here I am taking acid chloride, CH3 C double bond OCl, acid chloride I am taking, right? Mechanism, this negative charge attacking on the carbon, right? Then मिथाइल कार्बन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज Mgx पॉजिटिव चार्ज, राइट? हियर क्लोरीन इज देयर, राइट? हियर नया ग्रुप आ गया R, उसका डबल डैश था, ठीक है? रन R डबल डैश. नाउ this one is good living group. This halogen is good living group. Good living group, Lg, good living group. So what it will do, it is ready to lose, then this negative charge it will come back, then chlorine is releasing as Cl minus, then product क्या बनेगा? CH3 C double bond O, क्लोरीन तो गया, R डबल डैश, R डबल डैश. अभी तो क्या है? तो कीटोन है. इसके पहले हम लिखा था कीटोन विल रिएक्ट विद द Grignard reagent वापस, then again it will react, then again it is reacting R double dash Mgx, इसमें R minus Mgx plus, तो अटैक होगा ऐसा, फिर वापस पाई बॉन्ड हियर, then CH3 C ऑक्सीजन के पास Mgx, remaining R double dash as it is, नीचे R double dash. अभी रिलीजिंग ग्रुप कुछ नहीं है, then you have to do hydrolysis. You have to do hydrolysis H3O plus. Then hydrolysis में क्या होगा? This bond is breaking like this. Hydrolysis मतलब addition of water, H plus OH minus. H plus कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन के पास. CH3 कार्बन डबल डैश R double dash R, इधर तो OH बनेगा, right? That means if you take acid chloride, then we are getting tertiary alcohols. Tertiary alcohols is one thing. The second thing is observation. Grignard reagent 2 times attack हो रहा है.
ठीक है। प्रोडक्ट में 2 टाइम्स देखना है, वो होना चाहिए। एक बार पीवाई क्यूज में क्वेश्चन पूछा था, व्हाट दे गिवन, मे बी इधर इथाइल कुछ दिया होगा। प्रोडक्ट में अल्कोहल दिया, ठीक है, वन इज सेकेंडरी अल्कोहल, वन इज टर्शरी, और टर्शरी में 2 टाइम्स मिथाइल, 2 टाइम्स इथाइल ऐसा दिया था। जस्ट कॉन्सेप्ट समझ गए तो इजीली यू कैन आंसर इट। Grignard reagent, that alkyl groups 2 times attacking on the acid chloride, okay, 2 times should be present in the alcohol. Understood? Note down it. ठीक है, इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन, I am taking methyl magnesium bromide reaction with HC double bond OCl, right? ये तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, डोंट वरी अबाउट दिस, रिएक्शन तो होगा एसिड क्लोराइड। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट का आईयूपीएसी नेम लिख दो, प्रोडक्ट आईयूपीएसी नेम, मिथाइल 2 times, okay, this becomes OH hydrogen. Propane 2 is the correct answer, right? Next, second derivative, that is ester, इसके पहले था एसिड क्लोराइड, नाउ ईस्टर OET मतलब इथाइल, कहां कहां क्लोरीन है उधर OET, इधर क्लोरीन तो गया अभी, ठीक है छोड़ दो, सेम सेम प्रोडक्ट, वापस और एक बार लिख दो सेकंड। इफ आई टेक ईथर ईस्टर, इफ आई टेक ईस्टर, सेम, वन मोर टाइम, see if you have commanding on the reaction directly you can write from here to here, ये फाइनल प्रोडक्ट लिख सकते हैं, मतलब these two is gives rise to this one direct without confusion, perfectly पता है तो, otherwise you go through like this, okay. If you understood clearly, then shortcut ऐसा लिख सकते हैं, reactant and product. बस इतने 2 स्टेप्स में डिफरेंट है, बट रिमेनिंग तो सेम। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, थर्ड, उसमें भी होगा, ठीक है, डायरेक्टली आई विल राइट द प्रोडक्ट, note down this, इसका लिखना है तो आई सेंट यू इन द ग्रुप, ठीक है, उसमें फॉलो कर सकते। नेक्स्ट, एसिड एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH, ठीक है, एनी वन ऑफ दिस, राइट, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, by one shifted there, same step gives rise, ऑक्सीजन के पास MgX R डबल डैश, हाँ इधर तो डिफरेंट होगा, राइट,
O ethyl. Here, which group it is? O C double bond O CH3. This total group is left. Then remaining is same. This one is anhydride. Anhydride. There will accept anhydride. Here, this is the alcohol, right? Here, two types bond breakage takes place. Suppose here bond breakage takes place, that means H is releasing. That is acidic character. Okay, if bond breakage takes place here, there is a basic character. Okay, so you write as this like this. Reaction involving cleavage of OH. Heading. Reactions involving cleavage of OH. Cleavage of OH. In the bracket, acidic character. Acidic character. Reaction with sodium. Reaction with sodium. ROH react with sodium. देखो सोडियम क्या है? सोडियम Na प्लस. Na प्लस रिप्लेस दूसरा और एक प्लस, वो क्या होगा? H प्लस. So RONA forming hydrogen gas. Hydrogen gas releasing. This reactivity order. Reactivity order. Methyl alcohol has more than ethyl alcohol. उससे कम है सेकेंडरी अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, उससे भी कम है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. Okay, this is primary, secondary, tertiary. Don't confuse. ल्यूकास रिएजेंट में रिएक्टिविटी ऑर्डर अलग होता है, ठीक है, इसमें ऑर्डर अलग है. अभी क्या कर रहे हैं हम? एसिडिक हाइड्रोजन का बात कर रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है. सो व्हेन टर्शरी इज देयर, वो बॉन्ड के लिए इधर होने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन फॉर्मिंग. ओके, उस टाइम में रिएक्टिविटी इसको ज्यादा है. अभी हम बात कर रहे हैं इधर OH बॉन्ड का. OH बॉन्ड क्लीवेज तो प्राइमरी में अच्छे से होगा, क्योंकि इधर तो नहीं होगा, इसलिए. राइट, reactivity order written. Next, acylation and alkylation.
रिएक्शन 1 हो गया. नेक्स्ट रिएक्शन 2, acylation. Say alcohol reaction with acyl group R C double bond O Cl. In this case, it is forming R O C double bond O R. ठीक है, इसको R dash है, R dash. What is this? Ester बनते हैं, ester. Generally कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल वो भी ईस्टर बनते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, क्लोरीन के जगह पे OH. इतना तो डिफरेंस है. उस टाइम में OH एंड H2O निकलेगा. अभी H एंड Cl HCl निकल रहे. Then third, ये ओनली जेई के लिए सिलेबस है. अल्काइलेशन, असाइलेशन, अल्काइलेशन टेक्स्ट बुक में नहीं है, इट्स नॉट देयर. alcohol reaction with diazomethane. CH4 is the methane. CH4 में 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरोइथेन, 2 नाइट्रोजन है तो डायजोमीथेन. N2 का नाम है डायजो. CH2N2 diazomethane is giving ROCH2, ROCH3, CH2 this one and hydrogen CH3, मतलब CH2H. Okay, ether is forming. डायजो जनरली हीट करे तो क्या होता है, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है. That N2 released as nitrogen gas. ठीक है. Not a question. OH C double bond OH. I am taking CH3 C double bond O Cl group. ठीक है, इससे पता चल रहा है acylation हो रहा है. ठीक है. So this acylation, where it takes place? Its name is salicylic acid. Salicylic acid. Salicylic C, not S. चलो, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, IUPAC नेम है. आर्थो भी नहीं है. 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, IUPAC नेम. Common name salicylic acid, many times common names also important. Okay, right. Acylation हो रहा है, कहाँ होगा? OH की जगह पे होगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा. Where the acylation takes place? NH2 है तो NH2, नहीं तो OH इसके ऊपर होता है. क्यों? क्योंकि लोन पेयर है. ठीक है. So acylation takes place on OH group. So the product is ऑक्सीजन. हाइड्रोजन की जगह पे बस असाइल ग्रुप C double bond O CH3 group. Remaining carboxylic acid group as it is. Write the product name. एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. तो सैलिसिलिक एसिड है, एसिटाइलेशन हो गया, इसलिए एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. एसिटाइल salicylic acid. This is only aspirin
टैबलेट यूज करते हैं ना, फीवर टैबलेट, एस्पिरिन टैबलेट। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, दूसरा एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड मतलब इतना तक बेंजोइक एसिड, ये एसिटॉक्सी ऐसा भी, दैट इज आल्सो कॉमन है। नेक्स्ट नॉर्मल अल्कोहल है, लेकिन हियर बेंजीन रिंग इधर है। देखो इसमें क्या था, बेंजीन रिंग OH के साथ था, इधर एसिड क्लोराइड के साथ बेंजीन। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, राइट। प्रोडक्ट तो क्लोरीन कहां हो जाएगा, तो इधर इससे सो RO देन C डबल बॉन्ड O, इधर तो बेंजीन रिंग, बस इतना ही। Okay, this is the named reaction Scotton-Bowman reaction. Scotton-Bowman reaction. C2H5 ऑक्सीजन का 18 आइसोटोप दे रहे, मतलब वो ऑक्सीजन कहां जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। देखो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, जनरल कुछ कॉन्सेप्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड H देते, वो अल्कोहल बेस बोलते, मतलब बेस एसिड निकल जाएगा ऐसा, लेकिन इधर कुछ उल्टा है, ये OH एंड इधर से H निकल। क्यों? रीजन इज सी द न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब ये ऑक्सीजन अभी इसके साथ तो बॉन्ड बना था, दिस O18 इज फॉर्मिंग द बॉन्ड विद दिस कार्बन, सो और कौन जाएगा, अभी तो यही जाना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई R C डबल बॉन्ड O O18 C2H5, बाहर कौन जाए, इधर से H, इधर से OH H2O, राइट, नो डाउट। इस अल्कोहल का रिएक्टिविटी तो फिक्स्ड है, ऑलरेडी हम डिस्कस किया था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। ओके, सो reactivity order, reactivity order, alcohols, alcohols कैसे होगा, प्राइमरी है तो ज्यादा, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड तो कैसे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, देखो इधर न्यूक्लियोफाइल तो अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक होते तो इधर कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए। मैं एक बार हाइड्रोजन रख दिया, एक बार मिथाइल रख दिया, देखो इधर हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड वो कुछ तो इधर मिथाइल एंड C डबल बॉन्ड वो इज देयर, कौन अटैक होने वाला, कुछ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है। Where the nucleophile attack easily, in case of HC double bond O or CH3C double bond O, in case of formyl or in case of acetyl, where the nucleophile attack easily, nucleophile is negative charge, कहां अटैक होगा, पॉजिटिव चार्ज के पास। पॉजिटिव चार्ज तो इधर देखो, ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, where it will attack easily, first one या second one, one or two, one or two, where the nucleophile attack easily, वन पे अटैक होगा। क्यों? क्योंकि इधर से कोई देने वाला लेने वाला कुछ नहीं है, आइडल मतलब जीरो, लेकिन मिथाइल इज गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टू दिस, वो तो प्लस है तो बराबर तो ठीक है, लेकिन प्लस तो कम हो रहा है ना, बिकॉज डोनेटिंग
When nucleophile reach into the carbon तो प्लेस गायब हो गया, तो कहाँ अटैक होगा, मतलब कंपैरेटिवली लेस। और दूसरा और एक रीजन है, इधर कोई भी पूछने वाला नहीं है इनका, लेकिन इधर तो इधर बल्कि ग्रुप है, मिथाइल कभी इथाइल होता है, आइसोप्रोपाइल। So the steric hindrance also is the factor. Steric hindrance also is the factor. So carboxylic acid में the reactivity order is formic acid का ज्यादा होगा, formic acid is more than acetic acid, then कोई ethyl group, ठीक है, I'm writing here एक आइसोप्रोपाइल लिख दो, उसके बाद tertiary isopropyl, then tertiary. When the branches are increasing, the reactivity is decreasing. Note down fast. एक कंक्लूजन पॉइंट लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस. I sent you in the group ये नीचे वाला. So what you can write, reactivity is inversely proportional to steric hindrance. Steric hindrance, that part you can write. Next, reaction with acetylene. Reaction with acetylene. देखो ये सब रिएक्शंस अभी से whatever I am telling, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव पर्पस ही, ठीक है, बोर्ड एमएचसीडी के लिए तो जरूरत नहीं है. हाँ, नीट के लिए तो यूजफुल होगा. See, whatever I am telling, just listen compulsory, write the notes, then give more preference to your textbook. एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ो, डाउट्स उसमें कोई भी डाउट है तो पूछो, इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में समझ नहीं आते तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट. सर इतना इक्वेशंस कब याद रखना है, इफ यू फील लाइक दैट देन यू कैन अवॉइड दीज क्वेश्चंस. टेक्स्ट बुक में क्या है वो लेना है, इसमें टिक करो नोट्स में, ठीक है. दैट क्वेश्चन इज कंपल्सरी. वो क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो यू हैव टू आस्क. रिएक्टिविटी, राइट, क्या रिएक्टिविटी हो गया ना. हाँ, रिएक्टिविटी विथ, सॉरी, रिएक्शन विथ एसिटिलीन. Reaction with acetylene. Alcohol. Reaction with acetylene. H C triple bond H. Right. So if the pi bond somewhere it will shift either right side or left side.
ठीक है, if it is shift like this, partially negative partially positive, then क्या होगा? नेगेटिव इधर इधर क्या है, बॉन्ड क्लीवेज तो ऐसा हो रहा है ना, partially negative partially positive, राइट. सी एच एक बार पाई बॉन्ड ब्रेक होगा पॉजिटिव के साथ नेगेटिव ओ आर, देन सी एच एज इट इज, इधर तो एक हाइड्रोजन, दूसरा और एक बार ओ आर, एक बार हाइड्रोजन. दिस इज द प्रोडक्ट. The reagent is BF3HGO, mercuric oxide, heat. Boron trifluoride and mercuric oxide. ये होता है एसिटॉल, होता है एसिटॉल. एसिटॉल, हेमी एसिटॉल, कीटॉल, हेमी कीटॉल, वो कार्बोनल कंपाउंड में आता है, राइट. रिएक्शन विथ कार्बोनल कंपाउंड्स, ओके वो भी आ गए. Reaction with carbonyl compounds. It is there in the textbook. Alcohol reaction with CH3 C double bond OH is giving CH3 CH. देखो टू बॉन्ड्स है ना, इधर सिंपली वही तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये ऊपर जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ ये जाएगा. सो मिथाइल इधर OH, इधर OR, OR. It is called hemiacetal. 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 Then again it is react with one more alcohol. One more alcohol. Then H and OH, H2O बनेगा. Then CH3 COR and here also OR and H. This is the acetal. Acetal CE, this one. Acetal, hemiacetal and acetal. Next is the reaction 1, reaction 2. Suppose if I take the ketone ROH plus CH3 C double bond OCH, तो प्रोडक्ट में फाइनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, where the C double bond O is there, OR and OR, ठीक है. So CH3 CH3 as this, OR and दूसरा OR. This is called ketol. Ketol. Ketone से आगे ketol. Acetal and ketol. Reaction with Grignard reagent.
ROH reaction with ethyl magnesium bromide, कोई भी ले सकते हैं, इधर R इधर डिफरेंट अल्कोहल वैसा भी ले सकते हैं, कोई भी अल्कोहल ले लो इधर। सो इधर बनेगा अभी इथेन बनेगा, C2H5 that means C2H6, इथेन बनेगा, alkanes are forming. Why? Acidic hydrogen. Alcohol reaction with, this is called epoxide. Okay, epoxide or oxirane. Epoxide or oxiranes. ठीक है, O minus H plus. If O minus is attacking here, this bond will shift here. Then hydrogen will join with oxygen. Okay, here it is like this. Here OR, right? Here it will be OH. Sir, please send the photo in group. अभी तो ये तो भेज दिया मैंने, इसके पहले क्या था, वो एसिटाल एंड कीटाल। ओके, एक पीडीएफ भी वो भी भेज दिया। चलो नेक्स्ट, तो मैक्सिमम ये हो गया। नेक्स्ट, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH। अभी तक क्या डिस्कशन किया था, H क्लीवेज, अभी OH क्लीवेज। रिएक्टिविटी ऑर्डर, इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर, प्राइमरी से ज्यादा रिएक्टिविटी सेकेंडरी को होगा, सेकेंडरी से ज्यादा रिएक्टिविटी टर्शरी को। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ HCl, reaction with HX, reaction with HX. See, these are all reactions we discussed. ये Lucas reagent आते हैं अभी। Reaction with HX, अभी alcohol ROH reaction with HX forming RX, RX मतलब H2 तो बनेगा, right? लेकिन here reactivity order again, reactivity order, अल्कोहल का reactivity order तो फिक्स है अभी, OH निकालने वाला। अब HX में HF less reactive than HCl, HBr, then HI, मतलब HI है तो परफेक्टली रिएक्टिव,
Okay, HF HCl तो less reactive. HCl is less reactive. Here primary less reactive. Less reactive plus less reactive, no reactive. HCl टर्सरी के साथ तो ठीक है, तो प्राइमरी HI के साथ तो ठीक है, लेकिन ये 11th में भी पढ़ते हैं ना, वीक एसिड वीक बेस है तो नो रिएक्शन. एक एसिड और बेस दोनों में एक तो स्ट्रांग होना चाहिए. ठीक है, ये भी वीक है, ये भी वीक है. दैट्स व्हाई नेक्स्ट मिथाइल अल्कोहल प्लस HCl, नो रिएक्शन. नो रिएक्शन. Ethyl alcohol is there, reaction with HCl in the presence of even zinc chloride also, it is almost no reaction. Almost no reaction. CH3 ये isopropyl alcohol है, मतलब इज प्राइमरी, नाउ इट इज सेकेंडरी. सेकेंडरी में थोड़ा रिएक्शन होगा. Zinc chloride is giving white PPT after 5 to 10 minutes. After 5 to 10 minutes, then tertiary alcohols is giving white PPT immediately precipitation is giving. ये प्राइमरी में देख सकते हैं कुछ मिनिमम हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद इट विल गिव द टेस्ट. ओके, गिविंग आफ्टर 30 minutes. आफ्टर 30 minutes, लेकिन विद इन 5 to 10 minutes में रिएक्शन नहीं दिया, मतलब सो रिजल्ट हम क्या लिखते हैं? नो रिएक्शन. ठीक है. सब ऑप्शंस में आप गिविंग आफ्टर 30 minutes मींस वो तो भी सही है. ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं दे रहे, तो देता है लेकिन बहुत लेट. ओके, डन. नाउ हिंट क्या होगा, क्यों ऐसा दे रहे? ऑलरेडी वी डिस्कस्ड, ये रिएक्टिविटी टर्सरी को ज्यादा रिएक्टिविटी है. मोर रिएक्टिव HCl तो लेस रिएक्टिव. मोर रिएक्टिव प्लस लेस रिएक्टिव, ठीक है रिएक्टिविटी. बट प्राइमरी लेस रिएक्टिव, HCl वो भी लेस रिएक्टिव. लेस रिएक्टिव प्लस लेस रिएक्टिव, नो रिएक्शन. ओके, right. Now note point here. See this zinc chloride and HCl, it is known as Lucas reagent. It is reacting with primary, secondary, tertiary alcohols with different speed. That's why we can use this reaction to identify the primary, secondary, tertiary alcohols. That is only known as distinguished test. Distinguished test मतलब by any one chemical reaction, if you identify which is that functional group, that is known as distinguished test. So next one point you write it. Lucas reagent is used to distinguish primary, secondary, tertiary alcohols. Primary, secondary, tertiary alcohols. To distinguish primary, secondary, tertiary alcohols, we are using Lucas reagent. All combined लिखता हूं मैं, alcohols.
रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड में OH and double bond O. This is the nitric acid. This nitric acid will give only hydrogen. ये हाइड्रोजन देने मतलब ये क्या होगा? Obviously OH देना पड़ेगा. H and OH निकल गया. Then R bond oxygen and double bond O. ये ऑप्शन तो O18 I am writing here. O18 means this is the O18. अल्कोहल का ऑक्सीजन नहीं होगा ये प्रोडक्ट में. राइट. नेक्स्ट रिएक्शन विथ PCl3 and PCl5. PCl3 as well PCl5. सी यही दो रिएक्शन है हमको ऑलरेडी हैलो अल्केन चैप्टर में प्रिपरेशंस में आ गया था. ठीक है. OH को हटा के क्लोरीन रखने के लिए यूज करते हैं. ठीक है. RCl हाँ बाय प्रोडक्ट. देखो PCl3 केस में क्लोरीन एंड OH बिल्कुल डबल डिस्प्लेसमेंट जैसा एक्सचेंज होता है. सो इधर बनेगा POH टेकन थ्राइस. दिस इज ओनली नोन एज H3PO3. वो फार्मूला देख के ऐसा नहीं सोचना है फास्फोरस ट्राई हाइड्रोक्साइड, ये बेस ऐसा नहीं है. ठीक है. इट इज एसिड. ठीक है. फास्फोरस एसिड H3PO4 फास्फोरिक एसिड इज अ फास्फोरस एसिड. ठीक है. PCl5 केस में वन हिंट आई विल गिव यू. PCl5 का स्ट्रक्चर क्या होता है? PCl5 स्ट्रक्चर हैव यू रिमेंबर्ड? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होता है. ठीक है. इसमें ये 3 क्लोरीन्स का बोलते हैं एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. दीज आर एक्सियल बॉन्ड्स. ठीक है. ये एक्सियल इक्वेटोरियल समझने आए थे तो अभी चलेगा. इतना तो पता होना चाहिए. ये बॉन्ड लेंथ, ये वर्टिकल है ना, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा. These bond lengths are more, distance is more. So when bond length is more means bond strength is less. Okay. So ये 2 chlorines पहले cleavage होगा. Okay. Then these 3 chlorines are equal. Bond distance is same, strength is more. Okay. PCl5 में कभी भी 2 chlorines निकलते. Reason is this. ओके. PCl3 में सब तो सेम था. दैट्स व्हाई ऑल 3 क्लोरीन्स रिप्लेस्ड. लेकिन PCl5 में स्टेप बाय स्टेप होता है. पहले 2 क्लोरीन को हटाते हैं, उसके बाद और ज्यादा अल्कोहल है तो देखते हैं बाद में. लेकिन फर्स्ट स्टेप में ओनली 2 क्लोरीन्स गेट्स सेपरेटेड. ओके. द 2 क्लोरीन्स रिप्लेस्ड विद OH. सो दैट इज द प्रोडक्ट इज हियर POCl3. ठीक है. वो भी कैसे आ गया? देखो इसमें एक क्लोरीन तो हटा, 2 क्लोरीन्स रिप्लेस्ड विथ OH. ओके. आवर जनरल प्रिंसिपल व्हाट इज दैट? 2 OH ग्रुप्स आर ऑन सेम ग्रुप. रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है. इधर से हाइड्रोजन, इधर से OH निकाल दो, डबल बॉन्ड हो, कीटोन टाइप. तो वही हो गया POCl3. ठीक है. वो कॉन्सेप्ट बताया तो इजीली यू कैन रिमेंबर. राइट. POCl3 ऑफ कोर्स बाय प्रोडक्ट HCl. नेक्स्ट SOCl2. दिस वन आल्सो written SOCl2. एक स्पेशल भी था इसका. व्हाट वाज द स्पेशलिटी ऑफ दिस SOCl2? बनेगा तो RCl. तीनों में which is the best one? SOCl2. but why? ये बाय प्रोडक्ट्स है इसमें.
SO एंड ऑक्सीजन, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl, ये दोनों गैसेस है, दोनों गैसेस है. So there is no impurities, there is no impurities, gas is forming. Purva, yes, good, you have to remember like that. Okay, SOCl तो हो गया. Next, suppose if it is react with NH3, NH3, ठीक है, NH3 तो दिख रहे इधर, हाइड्रोजन एंड OH तो निकाल सकते. हाँ, वाटर को निकालना है तो वाटर को एक ऑब्जर्वेंट भी होना चाहिए उसमें, वाटर को ऑब्जर्व करने वाला नहीं तो वाटर को रिमूव करने वाला एक होना चाहिए. जनरल हियर Al2O3 we are taking Al2O3 alumina, it is also good water absorbent. So around 250 degrees Celsius में this water is eliminating and forming R NH2 plus water. Then is it visible? Right. One more reaction. Reaction with chlorine. Reaction with chlorine. Okay. ये R ग्रुप मिथाइल ग्रुप है तो it is forming CCl3 C double bond OH. Note if R equal to CH3. If R equal to CH3, that means ethyl alcohol कुछ होना चाहिए. नहीं, R equal to C2H5 होना चाहिए. R is C2H5. ओके, इसका दूसरा नाम है, कॉमन नेम क्लोराल, CCl3 C double bond OH, क्लोराल, क्लोराल, कॉमन नेम. Reaction with concentrated H2SO4. Reaction concentrated H2SO4. ठीक है, इधर टेम्परेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम टेकिंग C2H5OH, ethyl alcohol, concentrated H2SO4. The first one is 170 degrees Celsius. 170 degrees Celsius ज्यादा हीट है. सो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का काम क्या होता है? जनरली डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ठीक है, पानी को निकाल दें तो अभी एक मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा. S, who is that? Now CH2 double bond CH2, देखो स्ट्रक्चर CH3 CH2OH, ये तो अल्कोहल है. ठीक है, इधर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं बस हाइड्रोजन एंड OH. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का काम क्या होता है? रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल. तो डन. टेम्परेचर इंपॉर्टेंट 170 डिग्री सेल्सियस. सपोज मैं कुछ कम टेम्परेचर ले दे तो अराउंड 140 डिग्री सेल्सियस लिया था. 140 डिग्री सेल्सियस थोड़ा कम है. इसमें क्या है, अभी भी वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा लेकिन ये वाटर मॉलिक्यूल लेफ्ट, राइट. नाउ आल्सो वाटर मॉलिक्यूल विल रिलीज, बट फ्रॉम टू मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा. टू मॉलिक्यूल से मतलब देखो ऐसा लिखता मैं C2H5OH. ओके, ये दोनों मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल निकल. Still 2 minutes. Okay, no problem. Then here it is forming C2H5O C2H5. क्या बन रहा है इधर? ईथर. ईथर पहले क्या था? इथीन. आल्कीन बन गया था, अभी ईथर बन गया. नेक्स्ट, सपोज if you use 100 degree Celsius, if you use 100 degree Celsius, ठीक है, so
इथाइल बाइसल्फेट बनेगा, इथाइल बाइसल्फेट। देखो H2SO4 में H2SO4 एक हाइड्रोजन को रिलीज करे तो क्या होगा, HSO4 बनेगा। दिस H प्लस, हियर OH माइनस, H2O निकाला, C2H5 HSO4, C2H5 HSO4, और 0 डिग्री सेल्सियस करे तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर वी आर रिड्यूसिंग, डाइइथाइल सल्फेट C2H5 taken twice sulfate। ओके, टेम्परेचर के हिसाब से टेक्स्ट बुक में तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा कॉम्पिटिटिव एक्स्ट्रा। ये 2 बुक में है, स्टेट बोर्ड में, एनसीईआरटी बोथ। But 2 more reactions are there, just I will write it. Only 2 reactions. Al2O3, ethyl alcohol plus Al2O3, ethyl alcohol plus Al2O3, alumina। इसका काम क्या होता है, ये भी तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल। टेम्परेचर around 250 degree Celsius and 350 degree Celsius। हायर टेम्परेचर में बनेगा alkene, सेम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का काम, C2H5 C2H5, ईथर एंड alkene। से देखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है तो इधर 170 एनफ, 17 to the 34 मींस उसमें आधा टेम्परेचर ऑलमोस्ट। Al2O3 है तो थोड़ा वीक है, इसमें टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। ओके, you write these 2 reactions। So today class over. Once you go through the reactions, concept, try to understand the concept, difficult नहीं होगा, नहीं तो if you count the number of equations वो तो ज्यादा होगा, ऐसा नहीं। concentrated H2SO4 वो तो removal of water molecule, ठीक है, temperature variation, ठीक है, like that you have to read। Today you send the named reactions, writing part, writing work। Okay, bye।